Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the fifth video lecture of Law of Evidence, and in this video we will study proved, disproved, not proved, and may presume, shall presume, and conclusive proof. But before starting these terms, first of all let's see the standard of proof which is required in civil and criminal cases, so that our background is clear regarding those terms. Now, in civil cases, mere preponderance of probability is required to prove your case. Now, what is the meaning of this preponderance of probability? For example, let's see that there is a piece of land which is in dispute between A and B. Now, A will give certain evidences that the land belongs to him. Similarly, B will also give certain evidences that the land belongs to him. Now, judge will look over all the evidences and he will see that probably in whose favor the judgment should fall. So, if A has given 4 evidences and B has given 3 evidences, and the majority of evidences are in favor of A, then the court will grant that piece of land to A. This is called preponderance of probability, which is in civil cases. In criminal cases, a much higher degree of proof is needed before the person is convicted. The standard of proof required is called as beyond reasonable doubt. So in criminal cases, it should be beyond reasonable doubt in the mind of the judge before he convicts somebody in a particular case. So it should be beyond any doubt. Even if there is an iota of doubt, then the judge should not convict that particular person in criminal case. So there's a huge difference between standard of proof in civil and criminal cases. Now another thing is, in civil cases, the burden may lie on either parties to produce the evidence. But in criminal cases, the burden of proof lies on the prosecution. It is the prosecution which has the liability to prove that the evidence given by them is correct, is proved. It is completely on the prosecution in criminal cases. While in civil cases, any of the parties can either prove evidence or disprove it. Now let's see our first term, that is proved. Section 3 has defined proved as a fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. So in simple word, अगर कोर्ट ये मानता है कि एक प्रूडेंट मैन उस पर्टिकुलर फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस में इस चीज़ को सही मानता या इसकी एग्जिस्टेंस पे बिना डाउट किए विश्वास करता, देन उस पर्टिकुलर केस में तो फिर उसको प्रूव्ड मान लिया जाएगा. ठीक है, तो प्रूडेंट मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है और उसी पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग देखना है किसी चीज़ को प्रूव्ड या डिसप्रूव मानने में. अब प्रूफ जो है, इट नीड नॉट बी मैथमेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट. उसको मैथमेटिकली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना है. फॉर एग्जांपल 2 + 2 4 होता है, ये मैथमेटिक्स में प्रूव हो सकता है. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स. रियल लाइफ में ऑब्जेक्टिविटी काम नहीं आती है, तब हमें वहाँ पे अपना इंट्यूशन, अपना सब्जेक्टिविटी इस्तेमाल करना होता है टू जज वेदर समथिंग इज प्रूव्ड और नॉट. तो उसी तरह केस में भी हमको ऑब्जेक्टिवली एकदम कंफर्म नहीं करना है कि वो सही है कि गलत है. अगर सब्जेक्टिवली इट इज़ बियॉन्ड रीजनेबल, इट इज़ मोर और लेस गेटिंग प्रूव्ड, तब उसको हम प्रूव्ड मान लेंगे. इट मीन्स दैट एविडेंस वुड इंड्यूस रीजनेबल मैन टू कम टू अ कंक्लूजन. अगर रीजनेबल मैन को अपनी सब्जेक्टिविटी यूज़ करते हुए लगता है कि यही होना चाहिए, ये सही है, ये प्रूव्ड है, तो उसको हम प्रूव्ड मान लेंगे. अब सही लगने का जो प्रोसीजर है उसमें 2 फोर्सेस काम करती हैं, 2 प्रोबेटिव फोर्सेस काम करती हैं. पहला, टू बिलीव इन एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग गलत है, प्लीज़ सही कर लीजिएगा. टू बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट और टू बी प्रूव्ड. कन्फर्म होना चाहिए उस रीजनेबल या उस प्रूडेंट मैन को कि उसको बिलीव हो उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस में. टू इट बी प्रूव्ड. सेकेंड है, टू कंसिडर इज एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट. सेकेंड है कि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए इतनी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए कि उसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म की जा सके, तब वो प्रूव्ड मान लिया जाएगा. ये 2 पॉइंट्स जो हैं, ये प्रोबेटिव फोर्स जो होती है, ये कंक्लूड करती है वेदर अ फैक्ट इज प्रूव्ड और नॉट. Now let's see what is disproved and not proved. Disproved is completely converse of the definition of word proved.
सी अगेन, जैसा कि प्रूव में होने के लिए हमें रीजनेबल मैन और प्रूडेंट मैन को देखना था कि अंडर द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस क्या वो उस फैक्ट में बिलीव कर रहे हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस में, तो वो प्रूव्ड हो जाएगा। सिमिलरली डिसप्रूव में अगर एक रीजनेबल और प्रूडेंट मैन उसकी एग्जिस्टेंस पे कंप्लीटली विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो डिसप्रूव्ड हो जाएगा। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अपोजिट ऑफ प्रूव्ड। नेक्स्ट इज नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड के बीच की चीज़ें होती हैं, जिसके लिए हम लोग डिलिब्रेशन हुआ कोर्ट में कुछ एविडेंसेस रखे गए, बट कॉन्क्लूसिवली उसको ना तो प्रूव किया जा सका ना डिसप्रूव किया जा सका, तो वो डिलेमा वाला मैटर रह गया, दैट इज़ नॉट प्रूव्ड। फिर एक मैक्सिम पढ़ते हैं, फैलस इन उनो फैलस इन ऑमनिबस। ये मैक्सिम कहती है कि किसी चीज़ का अगर एक चीज़ झूठ है तो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ों को भी झूठ मानना चाहिए, बट इंडिया में ये मैक्सिम एज सच फॉलो नहीं होती है। इन इंग्लिश इट सेज दैट इफ़ अ थिंग इज़ द फॉल्स इन वन रिस्पेक्ट इट मस्ट बी टेकन टू बी फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल। इंडिया में जो मैक्सिम है ये कम्प्लीटली लागू नहीं होती है। इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया बट अ रूल ऑफ कॉशन, बट जजेस को ध्यान देना चाहिए एज अ मैटर ऑफ कॉशन एंड एक्सेप्ट दिस मैक्सिम। अब इस मैक्सिम को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया कि एक आई विटनेस है ए ने 5 बातें कही कोर्ट में, 5 बातों में से 2 बातें गलत प्रूफ हो गई, तो क्या 3 बातों को हम इग्नोर कर दे? नहीं। इंडिया में लॉ है कि 2 बातें अगर गलत भी प्रूव हो गई तब भी जो रेस्ट 3 पॉइंट्स विच द आई विटनेस हैज मेड शुड बी कंसिडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये इंडिया का रूल है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 4। सेक्शन 4 में हम 3 डेफिनेशन देखते हैं, मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। पहले उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स जस्ट रीड आउट द सेक्शंस and understand it. Pause the video and read it for at least 2-3 times. First, may presume. Whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved, or may call for a proof of it. This is what may presume should mean. Now let's see shall presume. Whenever it is directed by the act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. ठीक है। अब what is the difference between these two? It may regard such fact as proved. It was here it may regard. Now here it is it shall regard. It may regard, it shall regard. That is the difference. That is the difference between these two definitions. Now let's see what is conclusive proof. When one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of one fact, regard the other as proved and shall not allow the evidence for purpose of disproving it. ठीक है, अगर एक फैक्ट को प्रूव कर दिया गया है कोर्ट में और ये लिखा है कि इट इज़ conclusive proof of another, तो उस दूसरे वाले फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस ना तो एक्सेप्ट होना चाहिए कोर्ट में, ना उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रूव्ड रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। दैट इज़ कंक्लूसिव प्रूफ। नाउ लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ द डिफरेंट एक्सप्रेशन मे और शेल मीन। ठीक है, मे प्रिज्यूम जहाँ भी लिखा होता है सेक्शन में, इट मीन्स दैट कोर्ट कैन आइदर एक्सेप्ट इट और कोर्ट में नॉट एक्सेप्ट इट, और कोर्ट में रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट। ये होता है मे का मतलब, जहाँ भी मे प्रिज्यूम लिखा रहता है। बट जहाँ भी शेल प्रिज्यूम लिखा रहता है, शेल प्रिज्यूम मीन्स कि कोर्ट बाउंड है उसको एक्सेप्ट करने में, कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, उसको रिफ्यूट नहीं कर सकता। द कोर्ट इज़ बाउंड बाय द लेजिस्लेटिव कमांड टू रेज अ प्रिजप्शन इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट, अगर वहाँ पे शेल प्रिज्यूम दिया हुआ है तो। सिमिलरली मे प्रिज्यूम का मतलब हो गया, अब दोबारा हम सेक्शन 4 देखते हैं तो, कि किसी फैक्ट को कोर्ट मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अंटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर द प्रूफ। उसको प्रूफ मान भी सकता है और उसका एडिशनल प्रूफ मांग भी सकता है उसके प्रूफ के लिए। शैल प्रिज्यूम में वो एडिशनल प्रूफ नहीं मांग सकता, वो उसको प्रूव्ड मानेगा अंटिल एंड अनलेस इट इज़ डिसप्रूव्ड, पर अगर वो डिसप्रूव कर दिया गया तब उसको मान लेगा। अदरवाइज अगर वो डिसप्रूव नहीं किया जा रहा है तो उसको प्रूव्ड मानेगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे डिसप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्रूव्ड मान लिया जाएगा। और कंक्लूसिव प्रूफ हमने देख ही लिया, एक प्रूफ अगर कंक्लूसिव प्रूफ है दूसरे प्रूफ का तो कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, फर्दर एविडेंस नहीं मानेगा, कोर्ट दूसरे प्रूफ को भी जो कंक्लूसिव प्रूफ है उसको भी प्रूव्ड मान लेगा।
अब काइंड्स ऑफ प्रिजप्शन हम देखते हैं. प्रिजप्शन ऑफ फैक्ट. सी, प्रिजप्शन ऑफ फैक्ट होता है कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन से आप कोई चीज़ अगर ह्यूमन माइंड उसको फैक्ट मान लेता है तो उसको प्रिजप्शन ऑफ फैक्ट कहते हैं. अब क्या हो गया नेचुरल ऑब्जर्वेशन? नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो गया कि एक जो सेक्शन 114 में दिया हुआ है, ये कुछ एग्जांपल्स जो आप सारे एग्जांपल्स पढ़िएगा कि प्रिजप्शन ऑफ फैक्ट कैसे मानते हैं हम. सेक्शन 114 पढ़िएगा, सेक्शन 86 पढ़िएगा, 87 पढ़िएगा, 88 पढ़िएगा और 90 पढ़िएगा. मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक एग्जांपल है कि किसी का फ़ोन चोरी हुआ है और फ़ोन चोरी होने के 5 मिनट के अंदर ही वो फ़ोन जो है किसी और के पॉकेट में पाया गया. तो अब प्रिजप्शन ऑफ फैक्ट क्या होगा? नेचुरल माइंड से नेचुरली आप क्या प्रिज्यूम करेंगे कि या तो उस आदमी ने उस फ़ोन को चुराया था जिसके पास से वो पाया गया है, या तो उसको चुराने में उसका कोई ना कोई हाथ था, कोई ना कोई रोल था. ये आप प्रिजप्शन ऑफ फैक्ट है जो आप नेचुरल माइंड से खुद से सोच लेंगे. अब प्रिजप्शन ऑफ लॉ क्या होता है? प्रिजप्शन ऑफ लॉ होता है कि लॉ की वजह से कुछ हमें प्रिज्यूम करना पड़े. उसमें कुछ चीज़ें इररिब्यूटेबल होती हैं और कुछ चीज़ें रिब्यूटेबल प्रिजप्शन होती हैं. अब इररिब्यूटेबल क्या होती हैं? इररिब्यूटेबल होती हैं फॉर एग्जांपल सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पेनल कोड. सेक्शन 82 कहता है कि कोई 7 साल के कम का बच्चा अगर कोई क्राइम करता भी है तो भी उसको इनोसेंट माना जाएगा. सो दिस इज़ प्रिजप्शन ऑफ लॉ कि अगर 7 साल से कम का बच्चा क्राइम भी कर रहा है तो उसको इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा. इसको इररिब्यूटेबल है, मतलब आप इसको प्रूफ दे के कि वो क्रिमिनल था रिब्यूट नहीं कर सकते हैं. बट अगर वो बच्चा 7 से 12 के बीच में है तो वो रिब्यूटेबल प्रिजप्शन हो जाएगा. कैसे हो जाएगा रिब्यूटेबल? 7 से 12 के बीच में सेक्शन प्रोबेबली 89 कहता है, आई एम नॉट श्योर, बट प्रोबेबली सेक्शन 89 ऑफ IPC कहता है कि बच्चा अगर 7 से 12 के बीच में है तो उसकी क्रिमिनल इंटेंशन को देखा जाएगा. अगर जो क्राइम उसने किया है वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनली हाइनस है तो इन दैट केस उस चाइल्ड को क्रिमिनल माना जा सकता है. तो अदरवाइज़ तो वो इनोसेंट माना जाएगा, बट उस इनोसेंट वाले फैक्ट को रिब्यूट किया जा सकता है फर्दर एविडेंस से. ठीक है, तो ये रिब्यूटेबल प्रिजप्शन होता है. नाउ मिक्स प्रिजप्शन में क्या होता है? इट्स बोथ मैटर, इट्स अ मिक्स ऑफ फैक्ट एज वेल एज लॉ. फॉर एग्जाम्पल, अगर शादी के बीच में कोई मतलब एक मैरिड वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस चाइल्ड को हम लेजिटिमेट मानेंगे, उसको कभी इलेजिटिमेट नहीं मानेंगे. ये मिक्स प्रिजप्शन है क्योंकि उसकी शादी भी है और लेजिटिमेसी उसकी शादी की वजह से आ रही है. तो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स प्रिजप्शन. ठीक है, आई होप प्रिजप्शन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजप्शन ऑफ लॉ आर वेरी क्लियर टू यू ऑल. प्रिजप्शन ऑफ फैक्ट में अगेन मैं दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ. प्रिजप्शन ऑफ फैक्ट का दूसरा एग्जाम्पल हो गया दैट जैसे 2 लोगों ने कोई खून किया है मिलके. ठीक है, तो जब 2 लोगों ने खून किया है, एक बोल रहा है एक की गवाही के बेसिस पे दूसरे को सज़ा दे देना, ये थोड़ा सा नेचुरली ठीक नहीं लगता क्योंकि दोनों ही क्रिमिनल थे, दोनों ही अक्यूज़ड हैं. अगर 2 अक्यूज़ड हैं और एक विटनेस टर्न हो जाता है गवर्नमेंट का तो सिर्फ उसकी गवाही पे दूसरे को पनिश करना ठीक नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है कि जो विटनेस टर्न हुआ हो वो अपने आप को बचाने के लिए उसको फंसा रहा हो. देयरफॉर एक अक्यूज़ड की गवाही पे दूसरे अक्यूज़ड को नहीं पनिश करना चाहिए. ये एक तरीके से प्रिजप्शन ऑफ फैक्ट है. ये नेचुरली आता है, इसमें आपको लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना लॉ पढ़े भी ये चीज़ समझ सकते हैं. सिमिलरली अगर हम सेक्शन 115, 16 और 17 देखें एक्ट का, जो स्टॉपल से डील करता है, तो वो प्रिजप्शन ऑफ लॉ की बात करता है. वो लॉ को कहता है कि आप कैसे किसी चीज़ को प्रिज्यूम करें, और इट कैन अदर बी रिब्यूटेबल एंड अगेन इट कैन अदर बी नॉन रिब्यूटेबल और इररिब्यूटेबल. थैंक यू. I hope may or shall concept be clear है, because this concept of may and shall is not limited to only evidence, but in any law, in any particular law, if you see may and if you see shall, then without doubt be absolutely sure that in case of may it gives discretion to the court to either use its power or not. But in case of shall में the court is bound to follow legislative command. The legislative command which is given in the act, that particular act, the court is bound to follow it, and it cannot use its discretionary power in case of shall. Thank you.